میری بھابھی روز مجھ سے 1 کلو مسور کی دال منگواتی تھی، مگر اس وقت میں بہت حیران ہو جاتی جب بھابھی اس دال کو پکائے بنا ہی اپنے بیڈ روم میں لے جاتی اور جب باہر نکلتی تو لنگڑا لنگڑا کر چلتی اور کہتی کہ دال بہت اچھی تھی۔ ایک دن بھابھی کا راز جاننے کے لیے میں نے اپنی چھوٹی بہن کو بھابھی کے کمرے میں چھپا دیا۔ کچھ دیر بعد جب بہن لنگڑاتی ہوئے باہر نکلی تو میری جان ہی نکل گئی۔ آج شیتل بھابھی نے مجھ سے 1 کلو دال منگوائی تھی۔ میں جیسے ہی وہ دال لے کر گھر پہنچی تو بھابھی نے تھیلا مجھ سے لے لیا اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میں ہکا بکا سے رہ گئی تھی کہ بھابھی کو کیا ہوا۔ ابھی آدھا گھنٹہ ہی ہوا ہوگا کہ میرے بھیا آفس سے جلدی گھر آ گئے تھے۔ ان کی طبیعت خراب تھی اور میں اپنے کمرے میں ہی بیٹھی تھی۔ بھیا کو دیکھ کر میں جلدی سے اٹھ کر ان کے پاس آ گئی تھی۔ مجھے ان کی چنتا ستانے لگی تھی، مگر وہ بولے تھوڑی دیر آرام کروں گا تو ٹھیک ہو جاؤں گا۔ پھر انہوں نے اپنے کمرے میں جانے کے لیے دروازہ کھولنے کی کوشش کی تو دروازہ اندر سے بند تھا۔ بھیا کو کچھ شک ہوا تو بھیا نے دروازہ پیٹ ڈالا، مگر کمرے سے تو بھابھی کی کوئی آواز ہی نہیں آئی۔ بھیا نے مجھے گھور کر پوچھا شیتل کہاں ہے اور دروازہ اندر سے کیوں بند ہے؟ میں گھبرا گئی۔ میں بولی بھیا بھابھی تو کمرے میں ہی ہیں، شاید آنکھ لگ گئی ہوگی، ہو سکتا ہے بھابھی آرام کر رہی ہو۔ بھائی نے زور زور سے دروازہ بجایا یا پھر شیتل دروازہ کھولو جلدی کرو، لیکن بھابھی نے کوئی آواز نہیں دی۔ میں بھیا کا ہاتھ پکڑ کر انہیں باہر برآمدے میں لے کر آئی اور بولی آپ یہاں بیٹھ جائیے، میں دروازہ کھلواتی ہوں۔ اب میں نے زور زور سے دروازہ کھینچنا شروع کر دیا اور ساتھ ہی ساتھ کہتی رہی کہ بھابھی دروازہ کھول دو، بھیا آرام کرنے گھر آئے ہیں، ان کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ لیکن اندر اتنی شانتی تھی کہ کوئی ہلچل ہی نہیں ہو رہی تھی۔ میں بھیا کے پاس آ کر بیٹھ گئی، ان کا چہرہ غصے سے لال ہو رہا تھا۔ میں بولی بھیا آپ میرے کمرے میں آرام کر لیجیے، ہو سکتا ہے بھابھی سو گئی ہوں، نشا بھی تو سو ہی رہی ہے نا بھیا۔ میں نے سر ہلا دیا اور مجھ سے بولے کہ تم یہاں سے جاؤ، تم بھی آرام کر لو، لیکن میں بھیا کے پاس ہی بیٹھی رہی۔ تبھی بھیا کے کمرے کا دروازہ کھلا اور بھابھی لنگڑاتے ہوئے باہر نکلنے لگی۔ بھیا ایک دم غصے سے اٹھے اور بھابھی کو چلاتے ہوئے بولے کمرہ اندر سے بند کیوں تھا؟ تم نہیں جانتی کیا میں اپنے 2 معصوم بہنیں تمہارے حوالے کر کے کام کے لیے باہر نکلتا ہوں؟ تم تو ہر روز ہی یہ سب کرتی ہوگی نا، تم نے میری بہنوں کو اپنا سمجھا ہی نہیں ہے۔ میں خود 16 سال کی کم عمر اور ڈرپوک سی لڑکی تھی۔ بھیا کو غصے میں دیکھ کر میں خود ہی ڈر گئی تھی، مگر پھر بھی میں آگے بڑھی اور بولی بھیا آپ غلط سوچ رہے ہیں، بھابھی نے کبھی ہم کو پرایا نہیں سمجھا، وہ ماں کی طرح ہم دونوں کا خیال رکھتی ہے۔ شاید آج بھابھی کی طبیعت خراب ہو اس لیے سو گئی ہوں گی۔ میری بات سن کر بھیا نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور خود کمرے میں چلے گئے۔ بھابھی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے اور انہوں نے مجھے گلے سے لگا لیا تھا۔ میں بولی شکریہ اسنیہا۔ میں نے کہا شکریہ کو مارو، بولی جلدی چلو بھابھی کچن میں چل کر دال بناتے ہیں۔ بھابھی ایک پل کے لیے پریشان ہو گئی تھی۔ میں بولی اسنیہا دال تو میں نے کھا لی، تم اپنے کمرے میں جا کر پڑھائی کرو۔ بھابھی لنگڑاتے ہوئے کچن میں چلی گئی تھی۔ میں حیران ہو کر وہی کھڑی تھی کہ بھابھی نے مجھ سے جھوٹ کیوں بولا کہ انہوں نے دال کو کھا لیا ہے، کیونکہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ وہ کچی دال اپنے کمرے میں لے کر گئی تھی۔ میں اپنے کمرے میں آ گئی اور پڑھتے پڑھتے نہ جانے میری بھی آنکھ کب لگ گئی تھی، اور صبح کو گھبراتے ہوئے اچانک میری آنکھ کھلی تو میرے ساتھ نشا بھی جاگ گئی تھی، اور اب ہم دونوں کچن میں جا کر بھابھی کی مدد کرنے لگے۔ آج بھابھی جی مجھے بڑی بے چین سی اور کھوئی کھوئی سی لگ رہی تھی۔ بھیا بھی کچن میں آ چکے تھے، اب بھیا بھی ریلیکس لگ رہے تھے، بھابھی سے آرام سے باتیں کر رہے تھے۔ میں نے یہ سوچ کر یہ سب نظر انداز کر دیا تھا، یہ سب میرا وہم ہی ہوگا۔ صبح میں جلدی اٹھ کر کالج کے لیے تیار ہو گئی اور بھیا کے ساتھ چلی گئی تھی۔ وہ آفس جاتے ہوئے مجھے بھی ساتھ لے کر جایا کرتے تھے۔ میں اور نشا ایک ہی کالج میں ایک ساتھ پڑھتے تھے۔ اس کی فرسٹ ایئر کے ایگزام ہو چکے تھے، اس لیے اس کی چھٹیاں چل رہی تھی، جبکہ میں سیکنڈ ایئر میں تھی اور میرے ایگزام کے لیے ابھی 3 مہینے باقی تھے۔ کالج سے گھر آنے کے لیے میں بس سفر کرتی تھی۔ میں جیسے ہی گھر پہنچی تو مجھے لگ ہی رہا تھا کہ
तो मेरी भाभी मेरा इंतजार में ही बैठी होगी। वह मुझे देखकर फौरन ही कहने लगी, स्नेहा जल्दी से यूनिफॉर्म बदल लो और मुझे 1 किलो दाल लाकर दे दो। फिर वह कमरे में पैसे लेने के लिए चली गई थी। भाभी की लंगड़ाहट खत्म हो चुकी थी। मैं जल्दी से मुंह हाथ धोकर भाभी के पास आ गई थी। मैं शीतल भाभी से पैसे लेकर 1 किलो मसूर दाल लेकर आई थी। आज मैंने भाभी को थैला पकड़ते हुए कहा, भाभी आज प्लीज दाल चावल बना लीजिएगा। मेरी भाभी के चेहरे का रंग एक पल के लिए फीका पड़ गया था। फिर वह हाँ में सिर हिलाकर दाल अपने कमरे में लेकर चली गई। मुझे एकदम से अजीब सा लगा था कि वह ये कैसे हो सकता है कि कच्ची दाल अपने कमरे में कौन लेकर जाता है। फिर मैं ये सोचती हुई अपने कमरे में आ गई थी और पढ़ने लगी। शाम के वक्त भैया ऑफिस से आए तो मेरे और निशा के लिए खाने पीने का सामान लेकर आए थे। भैया की आवाज़ सुनकर भाभी अपने कमरे से निकलकर आ गई। वह लंगड़ाकर चल रही थी। मैं हैरान रह गई कि पहले तो भाभी के पैर की लंगड़ाहट खत्म हो गई थी, अब दोबारा वह क्यों लगा लंगड़ा रही है। मुझे भाभी पर शक हुआ, कहीं भैया को दिखाने के लिए नाटक तो नहीं करती। लेकिन जब मैंने भाभी के चेहरे की तरफ देखा तो साफ साफ पता चल रहा था कि वह बड़ी तकलीफ में है। मैंने अपनी सोच को फौरन बदला और भाभी के पास गई और उनसे पूछने लगी कि उनके पैर में क्या हुआ है। तो वह चुप बैठ गई थी। भैया को बड़ी भूख लगी थी, इसलिए भाभी फटाफट किचन में चली गई थी और मैं अक्सर किचन में भाभी को मदद करती थी। आज भी उनकी मदद के लिए मैं किचन में चली गई। मैंने कहा, भाभी दाल चावल के बारे में सोच कर बड़ी भूख लग रही है। भाभी ने मेरी तरफ बड़ी अजीब सी नज़रों से देखा था। फिर बोली, आज तो मैंने घर में आलू की सब्जी बनाई है। दाल तो मैं कब का खा गई, बहुत ही अच्छी दाल थी। यह सुनकर मैं हक्का बक्का रह गई थी। एकदम ही मेरा दिल भर आया और मैं सब कुछ छोड़ छाड़ कर अपने कमरे में आ गई थी। अपनी सोचों में गुम थी। लेकिन निशा को देखकर मैं एकदम से चौंक गई थी, क्योंकि वह अपनी पुरानी फर्स्ट ईयर की किताब खोलकर बैठी थी। मैंने उससे कहा कि जब पढ़ने के दिन थे तब तो तूने पढ़ाई से जान बचा ली थी, अब क्या फायदा इस पढ़ाई का। मैं निशा से किताब छीनने के लिए हाथ आगे किया तो उसने मेरा हाथ झटक दिया था और एकदम गुस्से से बोली, कभी तो मेरी जान बख्श दिया करो, हर वक्त मेरी माँ बनने की कोशिश मत किया करो। आप सिर्फ मुझसे 2 साल बड़ी हैं, 20 साल नहीं, जो मेरे हर मामले में टांग अड़ाती फिरती हो। मुझे निशा से इस तरह की बर्ताव की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। निशा ने तो कभी मेरे साथ ऐसे बात नहीं की थी। मैं उसे छोड़कर भैया के पास आकर बैठ गई थी। भैया मुझसे पढ़ाई के बारे में पूछने लगे, जबकि मेरा सारा ध्यान भाभी की टांग पर था। वह भैया के सामने आने का टाल रही थी और बहुत मुश्किल से कोशिश कर रही थी कि वह लंगड़ा कर ना चले। भैया ने मुझे जब यूं सोच में गुमसुम पाया तो परेशानी की वजह पूछने लगे। मैंने बिना कुछ सोचे ही भैया को बता दिया कि निशा ने मेरे साथ बदतमीजी की है। भाई यह सुनकर हैरान हो गए थे। फिर उन्होंने निशा को आवाज देकर बाहर बुलाया और बोले, तुम हर वक्त कमरे में क्यों घुसी रहती हो, बाहर आकर हम सबके साथ क्यों नहीं बैठती। भैया के शब्द अभी मुंह में ही थे कि निशा ने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया था। वह बोले, पिताजी खुद तो इस दुनिया से चले गए, लेकिन मुझे दर दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ गए। भैया कहता है कमरे में मत बैठो, भाभी कहती है घर के कामों में हाथ बटाओ, जबकि मेरी बहन तो मेरी दुश्मन ही बनी हुई है। भैया निशा की हालत देखकर हैरान रह गए थे। फिर भैया उठे और निशा को गले लगाकर प्यार करने लगे और बोले, निशा तुम जानती हो कि मैं तुम्हें कभी भी अपनी बहन नहीं समझा, अपनी हमेशा बेटी ही समझा है। फिर तुम इस तरह की बातें क्यों सोचने लगी हो। निशा कुछ भी बोले बिना सिर्फ रोटी चली जा रही थी। हम सब भी परेशान हो गए थे। फिर अचानक ही उसने अपने आंसू पोंछ लिए और हमसे माफी मांगकर कमरे में चली गई थी। भैया ने भाभी को आवाज देकर बुलाया और बोले, शीतल आजकल निशा घर में होती है, ये कितनी चिड़चिड़ी क्यों हो गई है, कोई बात हुई है क्या। भाभी का चेहरा एकदम ही सफेद पड़ चुका था। वह बड़ी डरी हुई लग रही थी। वह बोली, सुनील, निशा हर वक्त कमरे में बैठी रहती है, इसलिए मैंने 1-2 बार उसे बोला था कि घर के कामकाज में थोड़ी मदद कर दिया करो, इस तरह से तुम बोर भी नहीं होगी। शायद उसे मेरी बात बुरी लग गई होगी। भैया कुछ सोचने लगे थे, जबकि ना जाने मुझे ऐसा क्यों लगा जैसे शीतल भाभी हमसे कुछ छिपा रही थी।
बात सिर्फ इतनी ही नहीं थी, कुछ न कुछ गड़बड़ तो जरूर थी। अगले दिन भैया हमारे कमरे के लिए टीवी लेकर आए, अच्छी अच्छी मूवीज ले आए, किताबें नॉवेल्स भी लेकर आए थे। और भैया ने निशा के हाथ में थमा दी थी और बोले, आज के बाद तुम घर में बोर नहीं होंगी। फिर कैरम भाभी के हाथ में थमाकर बोले, शीतल तुम और स्नेहा कैरम खेल लिया करो। यह देखकर भाभी भी मुस्कुरा गई थी। मैं जब कमरे में आई तो निशा मुझे बड़ी जोश में लग रही थी। वह बोली, स्नेहा मैं सारा दिन फिल्म देख लिया करूंगी, तुम पढ़ाई में ध्यान लगाते रहना। मेरा भी दिल ललचा गया था भैया, निशा के लिए तो बच्चों वाली फिल्में भी लेकर आए थे। मैं देर रात तक जग कर पढ़ाई करती थी। एक दिन मैं पढ़ाई कर रही थी, तब मैंने भाभी को अपने कमरे से निकलते हुए देखा तो वह तेज तेज कदमों से चलती हुई छत पर चली गई थी। न जाने इतनी रात को पर छत पर क्या करने गई थी। मैं तो बड़ी परेशान हो गई थी। मैं पढ़ाई वगैरह सब भूल कर बाहर ही देखते रह गई थी। तकरीबन 1 घंटा छत पर बिताकर भाभी अपने कमरे में वापस चली गई थी। आखिर यह सब क्या हो रहा था? मैं इस फिक्र में खुलती जा रही थी, जबकि मेरा दिल पढ़ाई में भी नहीं लग रहा था। मैं कॉलेज से जैसे ही वापस आई तो भाभी ने मुझे पैसे थमा दिए और फिर से मुझे 1 किलो मसूर दाल लाने के लिए भेज दिया था। मैं कपड़े बदलने कमरे में गई तो ये देखकर दंग रह गई कि निशा फर्स्ट ईयर की किताबें पढ़ रही थी। मुझे देखकर वह इस तरह चौंक गई थी कि झट से वह किताब सहित कमरे से बाहर निकल गई थी। मैंने सोचा कि पहले भाभी की दाल ला देती हूँ, फिर निशा को तो बाद में देखूंगी। मैं दाल ले आई तो भाभी ने मुझसे थैला ले लिया और कोई भी बात किए बिना अपने कमरे में चली गई और अंदर से दरवाजा बंद करके कुंडी लगा दी। मैंने सब कुछ नजरअंदाज किया और निशा की खबर लेने के लिए कमरे में गई तो वह बोली, स्नेहा तुम भाभी को यह रोज रोज दाल लाकर मत दिया करो। उसकी ये बात सुनकर मैं हैरान रह गई कि वह ऐसा क्यों कह रही है। तो मैंने इस पर उससे पूछा, क्यों, क्या हुआ? निशा जल्दी से उठकर मेरे पास आई और कान में ऐसी बात बोल दी कि मेरा सर चकराने लगा। मैं निशा की बात जुटला भी नहीं सकती थी क्योंकि वह सारा दिन घर में ही होती थी। उसे तो भाभी के हर काम की बराबर जानकारी होती थी। मैंने निशा को कसम देकर मना कर दिया था कि वह फिलहाल इस बात को किसी से भी ना कहे। मैं खुद इस सारे मामले की तहकीकात करूंगी, फिर सच सामने आ जाने के बाद ही कुछ फैसला करेंगे। मैं पढ़ने बैठ गई तो निशा टेरेस पर चली गई थी। पढ़ाई में मेरा दिल बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। मैं निशा और भाभी की वजह से बहुत परेशान थी। ये दोनों ही बड़ी अजीब अजीब सी हरकतें कर रही थी। मैं अपनी सोचों में गुम थी। तभी भाभी कमरे से बाहर निकल आई और लंगड़ाते हुए चल रही थी। मुझे दाल में कुछ काला लग रहा था। मैंने कहा, भाभी दाल कहाँ गई? भाभी बोली, वे तो मैंने खा ली, बड़ी ही अच्छी थी। यह सुनकर मैं चुप हो गई और फिर भाभी लंगड़ा लंगड़ा कर चलती हुई घर के काम कर रही थी। तब अचानक मुड़कर बोली, निशा कहाँ है? मैंने बताया है, वह तो छत पर गई है। यह सुनकर भाभी के चेहरे का रंग अचानक ही उड़ गया था। वो लंगड़ाती हुई छत की तरफ जाने लगी थी। मैंने सिर झटक दिया और अपनी किताबें उठा ली। ये दोनों तो पागल है, मुझे भी पागल कर देंगे। लेकिन मेरा दिल पढ़ाई में लग ही नहीं रहा था। भाभी को छत पर गए हुए बहुत देर हो गई थी। मैं भी उन दोनों के पीछे छत पर चली गई। सीढ़ियों से चढ़ते हुए मैं भाभी की आवाज आसानी से सुन सकती थी। भाभी निशा को बुरी तरह से डांट रही थी। निशा की रोने की आवाज भी आ रही थी। मेरा दिल अपनी बहन के लिए टूट सा गया था। जैसे ही छत पर पहुंची तो भाभी मुझे देखकर डर गई थी। उन्होंने निशा को गले से लगाया और प्यार से बोली, कैरम नहीं खेलोगी? अपनी भाभी के साथ निशा ने भी अपने आंसू पोंछ दिए थे और जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश कर रही थी। मैं उन दोनों को हैरत से देख रही थी। मैंने निशा का हाथ पकड़ा और उसे खींचते हुए नीचे लेकर आ गई थी। उसे कमरे में लाकर मैंने पूछा, भाभी तुम्हें क्यों डांट रही थी? निशा घबरा गई और बोली, नहीं तो भाभी मुझे क्यों डांटेंगी कि वह तो मुझसे बहुत प्यार करती है। मैं कुछ सोचकर चुप हो गई थी। मैंने कहा, निशा मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। मैं भाभी का राज जानना चाहती हूँ। उस दिन तुमने जो मुझे बात बताई थी वह सिर्फ तुम्हारा वहम थी, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे असली सबूत लाकर दो। कल
जब मैं भाभी को दाल लाकर दूंगी तो तुम उनके कमरे में छिपकर देखना कि वो दाल कैसे खाती है और फिर लंगड़ा कर क्यों चलने लगती है। मेरी बात सुनकर निशा एकदम से मुस्कुरा गई थी। वह बोली, स्नेहा मैं तुम्हारे साथ दूंगी। अगले दिन कॉलेज से वापस आते समय मैं अपने दिमाग से सारा प्लान फिट करके आई थी। घर पहुंची तो मैंने भाभी को मेरा इंतजार करते हुए ही पाया था। वह बोली, स्नेहा जल्दी से दाल लाकर दे दो। मैं मुंह धोने के लिए कमरे में चली गई और निशा को भी समझा दिया कि जैसे ही भाभी को आवाज देकर बुला लूंगी तुम उनके कमरे में जाकर छुप जाना। उसने हाँ कह दिया था। मैंने भाभी की आवाज दी और कहा, भाभी दाल अब महंगी हो गई है, थोड़े पैसे और देने पड़ेंगे। भाभी मुस्कुरा कर बोली, तो फिर क्या हुआ, मैं अभी ला कर देती हूँ। वैसे इतनी देर में निशा भाभी के कमरे में जाकर छुप गई थी। मैं दाल ले आई थी। भाभी ने खुशी खुशी में दाल मुझसे ले ली और अपने कमरे में चली गई। मैं बाहर बरामदे में बेचैन होकर चक्कर पर चक्कर काट रही थी। 1 घंटे बाद भाभी के कमरे का दरवाजा खुला और वह लगड़ाती हुई कमरे से बाहर आ गई थी तो किचन में चली गई। तो निशा भी उनके कमरे से बाहर निकल आई। यह देखकर तो मैं भी दंग रह गई थी कि निशा भी आज लंगड़ा कर चल रही थी। मैंने निशा को हाथ को पकड़ा और जल्दी से पूछा, निशा बता मुझे क्या मालूम हुआ तुझे। निशा बड़ी परेशान सी लग रही थी। वह बोली, स्नेहा मैंने तो तुम्हें पहले ही बता दिया था कि भाभी हमसे छुप छुप कर घर से निकलती है, मगर तुमने यकीन ही नहीं किया था। वह खिड़की बहुत छोटी है, उससे निकलते वक्त पैर में चोट लग जाती है, इसलिए भाभी लंगड़ा कर चलती है। मैं भी उस खिड़की से निकलकर भाभी के पीछे जाना चाहती थी, मगर इस चोट की वजह से मैं वापस आ गई। मैंने निशा को कसम दी कि वह भैया को इस बारे में कुछ भी ना बताए। वह बोली, पागल तो नहीं है जो भाई का घर उजाड़ने का सोचा। मैंने निशा को एक किताब दे दी और बोली, तुम इसको पढ़ लेना। मैं उसका छोटा सा दिमाग दूसरी तरफ घुमाना चाहती थी, जबकि मैं खुद इस दुविधा में फंस गई थी कि भाभी के बारे में भैया को बताऊं या फिर ना बताऊं। भाभी हमारे साथ तो बहुत अच्छे से रहती थी, मगर वह मेरे भैया के साथ बेवफाई कर रही थी। यही बातें सोचते सोचते मेरी आंख लग गई थी। ना जाने कितनी देर में सोती रही। जब भैया की चीखने चिल्लाने की आवाज आई तब मैं घबरा कर उठ बैठी। मेरी तो जान ही निकल गई थी। मैं भागती हुई गई तो बरामदे में मैंने भैया, भाभी और निशा को देखा। मुझे लगा निशा ने भाभी की हकीकत भैया को बता दी। नहीं, तभी तो वो उन पर गुस्सा कर रही है। मुझे देखकर भैया गुस्से से बोले, स्नेहा मैं तो तुम्हें बहुत होशियार समझता था, मगर तुम भी इसको नहीं संभाल पाए। भैया का इशारा निशा की तरफ था। मैं जल्दी से आगे बढ़ी और बोली, भैया हुआ क्या है। भाई की आंखों में आंसू आ गए थे। वह बोले, तुम निशा से मुझे यह पता करके बता दो, छत पर कौन था जो इससे मिलने आया था। मैं एकदम ही डर गई थी। मैंने जोर जोर से नाम सिर हिला दिया था। मैंने बोला, नहीं भैया, हमारी निशा ऐसी नहीं है, जरूर आपको कुछ गलत फहमी हुई होगी। भाभी भी आगे बढ़कर बोली, सुनील आप बिना सबूत इतना गुस्सा ना करे, बच्ची है, वह सुधर जाएगी। भैया अब भाभी को घूर रहे थे। वह बोले, मैंने शादी के पहले ही दिन तुम्हें बताया था कि दोनों लड़कियां सिर्फ मेरी बहन ही नहीं बल्कि मैं इन्हें अपनी बेटियां भी समझता हूँ। तुम माँ बनकर इनकी परवरिश करना। इस तरह से पालन पोषण किया तुमने इनका। मैंने निशा का हाथ पकड़ा और उसे अपने कमरे में ले गई थी। मैंने निशा से पूछा, तुम मुझे सब कुछ सच बता दो कि आखिर बात क्या हुई है। वह रोते हुए बोली, भाभी चाहती है कि हम दोनों उनके पति का घर छोड़कर चली जाएं, इसलिए वह यह सब करके हमें हमारे भाई की नजरों में गिराना चाहती है। निशा की बात मुझे अंदर तक हिलाकर रख दिया था। मैं बोली, तुम फिक्र ना करो, हमारे लिए गड्ढा खोदने वाली खुद ही उसमें गिर जाएगी। अगले दिन भैया के साथ कॉलेज जाने लगी तो भैया बड़े खामोश से थे। उनकी आंखों में गुस्सा दिख रहा था। मैंने कहा, भैया आज आप ऑफिस से आधी छुट्टी लेकर मुझे कॉलेज लेने के लिए आ जाइएगा। मैं एक हकीकत आपके सामने रखना चाहती हूँ। भैया कुछ कहे बिना ही चले गए थे, मगर यह उनकी मेहरबानी थी कि वह मुझे लेने के लिए आ गए थे। मैंने उनसे कहा कि वह घर से बाहर ही रहे जब तक मैं इशारा करके उन्हें ना बुलाऊं। तभी वह आए और मैं जैसे ही घर गई भाभी ने दाल का ऑर्डर दे दिया। थोड़ी देर बाद जब मैं दाल लेने बाहर निकली तो भैया आगे बढ़े और बोले, कहाँ जा रही हो। मैंने कहा, बस आप चुप रहे, आज हकीकत आपके सामने आ जाएगी।
मैं दाल लेकर घर चली गई तो भाभी ने मेरे हाथ से थैला ले लिया और अपने कमरे में चली गई थी। मुझे इसी वक्त का इंतजार था। मैं जल्दी से घर से बाहर आई और भैया को अपने साथ घर लेकर गई। मैंने कहा, भैया आप अपने कमरे का दरवाजा खोलिए। भैया के पास एक कतार था जिसके जरिए से उन्होंने अपने कमरे का दरवाजा खोल लिया था। जब हम अंदर दाखिल हुए तो भाभी अंदर नहीं थी। उनके कमरे की खुफिया खिड़की खुली थी। भाई ने इस खिड़की से बाहर देखा तो उन्हें भाभी नजर आई। वह तेज तेज चलती हुई कहीं जा रही थी। भैया भी उस खिड़की से कूद गए थे, जबकि मैं और निशा भी बड़ी मुश्किल से उस खिड़की से कूद उतर पाए थे। हम तीनों भाभी का पीछा करते हुए दूर एक सुनसान सी जगह पर पहुंच गए थे। एक बाबा का घर था जहां लोग ताबीज बनवाने के लिए आया जाया करते थे। चलते हुए अचानक जब भाभी ने पीछे मुड़कर देखा तो हम तीनों को देखकर उनके चेहरे का रंग फीका पड़ चुका था। भैया आगे बढ़े और भाभी का हाथ पकड़कर उन्हें घर ले आए थे। भैया के तेवर में बड़े खतरनाक हो चुके थे। वह भाभी से बोले, शीतल आज मैंने अपनी आंखों से सब कुछ देख लिया है, तो झूठ बोलने का कोई मतलब नहीं है, मुझे सच बता दो। तो भाभी बोली, सुनील भगवान जानता है, मैंने आपकी इन दोनों बहनों को अपनी बेटियों की तरह ही समझा है, मगर इनकी तरह वजह से आप मुझ पर शक करते ही हैं तो मैं इनका ख्याल नहीं रखती। इनकी वजह से आप मुझे दो शब्द भी सुना देते थे तब मुझे वह हम हो गया था कि शायद आप मुझसे प्यार नहीं करती। ऐसा भी लगता था कि जैसे आप किसी और से मोहब्बत करते हैं और मुझे तलाक दे देंगे। मैंने अपनी बहन से इसके बारे में बात की तो वह बोली, एक साधु बाबा है जिसका मंत्र बहुत शक्तिशाली है, उससे पत्ती मुट्ठी में आ जाता है, इसलिए मैं आप सबसे छुपकर उनकी सभा में जाने लगी थी। साधु बाबा ने कहा था, पूरे 30 दिन तक 1 किलो मसूर की दाल पर मंत्र का प्रयोग करना है और मुझे वही दाल नहर के किनारे फेंक देनी है। मुझे यह सब करते हुए पूरे 25 दिन हो चुके थे। आप दोनों के जाने के बाद इसी मंत्र का पाठ करती थी, इसकी वजह से निशा पर ध्यान न रख सकी, मुझसे चूक हो गई। निशा अपने ही इलाके के आवारा लड़के रवि से मोहब्बत कर बैठी और उनके दरमियान चिट्ठी और खत का सिलसिला शुरू हो चुका था। मुझे निशा पर शक हुआ, इसलिए मैं आधी रात को उठकर छत पर चली गई। तब मुझे रवि का खत नजर आया। उसने निशा की बहुत तारीफ करी थी। मैंने वह खत निशा को दिखाते हुए कहा, मैं तुम्हारी हकीकत तुम्हारे भैया को बता दूंगी, इसलिए समय के रहते सुधर जाओ। मगर निशा तो मुझे ही अपना दुश्मन समझने लगी थी। मैं ये ठान चुकी थी कि 30 दिन बाद यह प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और मेरी मन्नत भी उसके बाद निशा से सख्ती से पेश आऊंगी। मगर मेरा यह व्रत पूरा होने से पहले ही आप मेरा राज जान चुके हैं। मैं आपसे माफी मांगना चाहती हूँ कि मैं निशा का ख्याल नहीं रख पाई। मैंने निशा की तरफ देखा तो वह शर्म के मारे सिर झुकाकर खड़ी थी। भैया ने आगे बढ़कर निशा के सिर पर हाथ रख दिया और बोले, बेटा अगर रवि अच्छा लड़का होता तो मैं उसकी शादी तुम्हारे साथ खुद करवा देता, मगर वह बहुत बुरा इंसान है। इलाके की हर लड़की के ऊपर उसकी नजर है। निशा रोने लगी और बोली, भैया घर में सूनापन और अकेलापन था, इसकी वजह से मैं इस गलत राह पर चल बैठी, वरना मुझे रवि में कोई दिलचस्पी नहीं है। भैया मुस्कुरा दिए थे, उनके सिर से भारी बोझ उतर गया था। फिर उन्होंने हम दोनों को कमरे में भेज दिया था। यकीनन अब भाभी की खबर लेने वाले थे। वह भाभी को हमारे सामने कभी डांटा नहीं करती थी। मैंने कहा, भैया भाभी को कुछ मत कहना, वह हमारी माँ जैसी है। भाभी रोते हुए हम दोनों बहनों के गले लग गई और एक बार फिर हमारे घर में प्यार का खुशनुमा माहौल बन चुका था। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी ये कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि आप अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक यू।